Hello, my dear students. I hope all of you are well in your home during COVID-19 pandemic. So, guys, this is the lecture number 2 of the subject renewable energy sources. This subject is an elective in electrical engineering 5th semester in IKG PTU Kapurthala, and here we are discussing generally two parts. First part is classification of energy. Already I classified in my previous lecture, and before that we have two particular topics in this curriculum in first unit. First is world renewable energy resources, means the renewable energy scenario in world right now at present, as well as renewable energy scenario in India also. So first we are discussing the world renewable energy resources as per as your curriculum in renewable energy sources, electrical engineering 5th semester. Before that, I suggest you guys, if you are the student of electrical engineering in 5th semester, 3rd semester or 7th semester in any university across the country, you can subscribe my channel and share with your friends. And if you are the faculty member of any university across the country, you can subscribe my channel and share with your friend. So guys, right now I am going to start a topic, world renewable energy resources. So first point is that renewable energy will play a key role in decarbonization of our energy system in the coming decades, but how rapidly is our production of renewable energy changing? It means जो हम लोग ये renewable energy के लिए जा रहे हैं उसका रीजन ये है कि जितने भी हमारे पास प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं नेचुरली, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, कोल्स एंड अदर रिसोर्सेज, वो सारे के सारे डिप्लीटेड हो रहे हैं डे बाय डे, और हमें इन सब चीज़ों को जब हम लोग प्राइमरी एनर्जी से इसको सेकेंडरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं इसको हम यूटिलाइजेशन के लिए, तो उस बीच में बहुत सारे कार्बन एमिशन होता है, जिस कारण से ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट हो रही है और सारा का सारा हमारा इकोसिस्टम जो है वो डैमेज हो रहा है. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू compile our demand on the basis of renewable energy generations. Next, to reduce CO2 emission and local air pollution, the world needs to rapidly shift towards low carbon sources of energy, nuclear and renewable technology. आज के डेट में भले ही एक ग्लोबल इशू क्रिएट हो रहा है, बट we are moving towards on the nuclear power generation as well as renewable technology. But nuclear generation is more dangerous. If some damage will happen in power plant, it's more dangerous of the humans nearby the particular power plants. So right now 200 gigawatt of renewable power addition, solar 115 gigawatt, wind 60 gigawatt and hydro 16 gigawatt. Renewable heat demand increased marginally, means जो रिन्यूएबल से के थ्रू हम लोग हीटिंग करते हैं, जैसे सोलर के थ्रू हम लोग सोलर वाटर हीटिंग या सोलर रूफ हीटिंग करते हैं कूल एरिया में और ड्राई एरिया में, वहां पे इसकी डिमांड जो है वो कम हो रही है. 5% ग्रोथ इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन. एक बायोफ्यूल प्रोडक्शन जो हमारा जटरोफा है या हमारे जो बायो प्रोडक्ट्स है, बायोगैस जो है, बायोमास जो है, उस एनर्जी में भी हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ कर रहे हैं. बट जो मोस्टली जो ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड में, दैट इन द फील्ड ऑफ सोलर, विंड एंड हाइड्रो. हाइड्रो को हम लोग अलग कर देते हैं क्योंकि हाइड्रो को हम जनरली रिन्यूएबल एनर्जी में कंसीडर नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई हाइड्रो विल उसको हम लोग बाहर कर देते हैं ग्रुप से, रिन्यूएबल के ग्रुप से. बट मेन जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, दैट विल बी सोलर, विंड, जियोथर्मल एंड बायोमास. दीज आर दी 4 मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट विल बी जनरेटेड एट प्रेजेंट सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड. तो हम लोग उस एक एक एनर्जी के बारे में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे. पहले विंड को करेंगे, देन सोलर को करेंगे, देन जियोथर्मल एंड देन बायोमास. उसके ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी देखेंगे, कहाँ पे कितना हम लोग जनरेट कर रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे उसके बारे में. तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो करते हैं शेयर ऑफ प्राइमरी एनर्जी फ्रॉम विंड 2019. हमने सारा डाटाबेस जो लिया है वो 2019 के डाटाबेस के हिसाब से लिया है. लेटेस्ट आपको मैं दिखा रहा हूं सारा कुछ. तो जो
प्राइमरी रिसोर्सेज अगर मैं बात करूं विंड को बनाने के लिए, तो आप ये देख रहे हैं ये कलर के हिसाब से ये इसका इंटेंसिटी है ग्रेटर देन 5%। मीन्स जो ये आपको ये कंट्रीज दिख रही है दीज आर ग्रेटर देन 5% इनका पूरा का पूरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सम यूरोपियन कंट्रीज, सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील, वहां पे हो रहा है। और कुछ पार्ट ऑफ जो है विंड का देखिए मोस्टली पार्ट जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए आता है, आपका कनाडा आता है, एज वेल एज जो आप ये देख रहे हैं चाइना और ये ऑस्ट्रेलिया, ये लोग विंड पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? आपने कभी सोचा कि मैं जो ये सारा चीज आपको दिखा रहा हूं, आप लोग जो देख रहे हैं कि इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है इन पर्टिकुलर कंट्रीज की, या कुछ पार्ट ऑफ हम लोग इंडिया भी देख रहे हैं, क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि विंड पावर जनरेशन जो आपका होता है दैट विल बी मोर बेनिफिशियल इन दी कोस्टल एरिया। तो आप जो यूएसए का देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कोस्टल एरिया जो आप देख रहे हैं पूरा नॉर्थ अमेरिका का ये, और ये पूरा का पूरा कनाडा और इनका, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी एयर डेंसिटी मिलती है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली इन ब्राजील आप देखिए कितना ज्यादा कोस्टल एरिया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आप देखिए चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया में कोस्टल एरिया ही है। न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड में भी अच्छी खासी जनरेशन होती है। और चाइना देखिए, चाइना के पास भी बहुत सारे पावर प्लांट है विंड के। तो जब हम पावर उसकी क्वालिटी पावर डिमांड की बात करेंगे तो सबसे मैक्सिमम जो आपका पावर जनरेशन हो रहा है वो पावर जनरेशन विंड के थ्रू जो कर रहा है दैट विल बी चाइना। चाइना के पास टोटल एट प्रेजेंट अगर 2019 का आप डाटा देखेंगे तो 405.7 टेरा वॉट आर ये लोग जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ए विंड पावर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप बात करेंगे विंड में, तो दूसरे नंबर पे आता है आपका यूएसए। यूएसए लगभग 303 टेरावाइट जो है टेरावाट आर जो है वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग विंड पावर। उसके बाद जो आपका कंट्री आता है थर्ड नंबर पे दैट विल बी दी जर्मनी। जर्मनी का भी काफी अच्छा योगदान है। जर्मनी लगभग 126 टेरावाट आर जनरेट करता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे ब्राजील का, ब्राजील 55.83 टेरावाट आवर जनरेट करता है। आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो नियर बाय 19.52 टेरावाट आवर जनरेट करता है। उसके अलावा जो आपका मेजर है वो यूरोपियन कंट्री में लाइक स्पेन नियर बाय 57 टेरावाट आवर। उसके बाद है आपका इंडिया। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया लगभग 64 टेरावाट आवर जनरेट कर रहा है विंड पावर के थ्रू, जिसमें मोस्टली जो है आपका वो है कर्नाटका के कोस्टल एरिया में, सम पार्ट ऑफ ओडिशा, मोस्टली इन गुजरात, कच्छ जो है वहां पे, सम पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो, है ना। तो ये सारा का सारा जो आप देखेंगे तो सबसे जो बिगर जनरेशन कहलाएंगे विंड के केस में दैट विल बी दी चाइना, सेकेंड नंबर इन यूएसए, थर्ड इज आपका आ गया जर्मनी, फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो आपका ये इंडिया ही आता है फोर्थ नंबर पर विंड पावर जनरेशन में। और फ्रांस भी लगभग 35 टेरावाट आवर जनरेट करता है। तो ये आपका जो देख रहे हैं दीज आर दी शेयर ऑफ प्राइमरी एनर्जी फ्रॉम विंड, उसकी इंटेंसिटी ये बताता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट है विंड के बाद सोलर। तो ओवरऑल जो विंड का है, आप लोग जो विंड का जो ये स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, इसमें आपको जो भी कंट्रीज नजर आएगा दैट ऑल कंट्रीज हैविंग ए ह्यूज एरिया ऑफ कोस्टल एरिया। इनके पास कोस्टल एरिया काफी बड़ा है जिसमें ये लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो ये जो आपने देखा ये ओवरऑल विंड का था। अब हम लोग सोलर पे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पावर जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है दैट विल बी द सोलर। अब सोलर की जब मैं बात करूं तो सोलर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी इंटेंसिटी है सोलर में वो आप देखिए किस तरह से ग्रेटर देन 100 गीगावाट तक का जो जनरेशन है वो इस ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। कलर इंटेंसिटी से आप स्पेक्ट्रम देख सकते हैं सोलर का कि कौन सा कंट्री किस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग ए सोलर पावर। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी 1997 टू 2019 के बीच में कम्युलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी मेजर्ड इन गीगावाट। गीगावाट में मैंने लिया हुआ है पूरा का पूरा ये, और ये आप इस कलर कोडिंग से पूरा का पूरा देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। तो जो आपका मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो जनरेशन वाला पार्ट है, जो अगर मैं बात करूं तो सोलर में सबसे ज्यादा जो जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर दैट विल बी दी चाइना। इनका 223 गीगावाट इसका है चाइना का, लगभग 223 गीगावाट। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड नंबर की बात करूं
तो सेकेंड नंबर पे अगेन यूएसए आएगा। एंड यूएसए का जो है पूरा का पूरा, यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए लगभग 109 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग सोलर पावर राइट नाउ। इन 2019 का डाटा मैं सारा आपको बता। अब अगर मैं थर्ड नंबर पे बात करूं तो इंडिया की जहां तक बात है दैट विल बी 47 गीगावाट नियर बाय। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो लगभग 18 गीगावाट। और अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूं, यहाँ पे कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप स्पेन की बात करोगे तो 15 गीगावाट के आसपास है इनका। अगर आप जापान की बात करोगे तो जापान भी काफी अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाय यूजिंग सोलर मैकेनिज्म, और जापान का लगभग 75 गीगावाट है। और जापान आई थिंक यूएसए के बाद तीसरे नंबर पे आता है पावर जनरेशन बाय यूजिंग सोलर मैकेनिज्म। उसके बाद जो आपका है ब्राजील, ब्राजील भी लगभग 56 गीगावाट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ब्राजील का जो ये है, सॉरी विंड का 56 है, लेकिन अगर आप सोलर की बात करेंगे तो ब्राजील 5.56 गीगावाट ही लगभग है। जर्मनी का काफी अच्छा जनरेशन है बाय यूजिंग सोलर, नियर बाय 48 गीगावाट के आसपास है जर्मनी का। और अगर आप अदर कंट्रीज की बात करेंगे लाइक टर्की का ठीक ठाक पोजीशन है, टर्की लगभग 11 गीगावाट करता है। और इटली की अगर आप बात करेंगे यूरोपियन कंट्री में तो इटली का जो है लगभग 20 गीगावाट के आसपास जनरेशन है। तो ओवरऑल अगर मैं सोलर की बात करूं तो सोलर में सबसे टॉप लेवल पे चाइना चल रहा है। चाइना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग सोलर। देन सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं दैट विल बी द यूएसए। थर्ड नंबर पे बात करूं दैट विल बी द जापान। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इंडिया। और फिफ्थ नंबर पे आपका आता है फोर्थ नंबर पे आपका जर्मनी आता है। और फिफ्थ नंबर पे आपका इंडिया स्टैंड करता है बाय यूजिंग सोलर जनरेशन। और इंडिया के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा जब मैं जाऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो इन द केस ऑफ इंडिया ओनली। जब मैं इंडिया के लिए बात करूंगा पर्टिकुलर स्टेट वाइज, तब मैं इंडिया का अलग से आपको डिटेल दूंगा। बट एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो सोलर में इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पे है। उसके अलावा जो मोस्टली आप देख रहे हैं कलर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जैसे चिली में भी ठीक ठाक जनरेशन हो जाता है, साउथ अफ्रीका भी है ना। तो ये सब भी कंट्रीज है थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बाय यूजिंग सोलर मैकेनिज्म। बट टॉप पे चाइना, सेकेंड नंबर यूएसए, थर्ड नंबर आपका हो गया क्या कहते हैं जापान, फोर्थ नंबर पे आपका जर्मनी और फिफ्थ पे इंडिया। ये आपको याद रखना है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए कि आपसे जब पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट सोलर से कौन कर रहा है, दैट विल बी चाइना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा सकता है, तो इंडिया का पोजीशन एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो नंबर 5th पे है, सेकेंड नंबर यूएसए, थर्ड पे जापान है। जबकि जापान बहुत छोटा है बट सोलर के मामले में अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो जापान एक काफी अच्छी कंडीशन में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाई करता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपका बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स एनर्जी प्रोडक्शन जो है 2009 में दैट विल बी द टेरावाट आवर्स में हम लोग लेंगे इसको। तो टेरावाट आवर्स में अगर मैं जाऊंगा तो आप ये देख रहे हैं 500 टेरावाट, ये सबसे ज्यादा जो ग्रीन है। तो बायोमास के मामले में अगर मैं जाऊंगा बात करने के लिए तो बायोमास के मामले में यहाँ पे चाइना जो है वो पीछे, यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे जो आपका है वो है यूएसए, दैट विल बी 433 टेरावाट आवर वो लोग जनरेट करते हैं। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे यहाँ पे ब्राजील आता है जिनका 276 टेरावाट आवर है। तीसरे नंबर पे आपका आता है यहाँ पे इंडोनेशिया जिसका 77 टेरावाट आवर है। चौथे नंबर पे आपका आता है जर्मनी जिसका 40 टेरावाट आवर है जर्मनी के पास। और आपके जो इटली है, इटली का लगभग 9 टेरावाट आवर है। और जो आपका फ्रांस है, फ्रांस लगभग 31 टेरावाट आवर के आसपास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है बाय यूजिंग बायोमास। तो टोटल बायोमास प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन टेरावाट आवर। बायोफ्यूल प्रोडक्शन इंक्लूड बोथ बायोएथेनॉल एंड बायोडीजल के बेस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप में किसको आप देख रहे हैं, सबसे टॉप में आपका अमेरिका, सेकंड पे आपका कलर के हिसाब से ही पता चल रहा है। इसीलिए मैंने कलर कोडिंग करी कि आपको कलर कोडिंग से पता चल जाए कि आपका कौन सा कंट्री जो है वो टॉप लेवल पे है। तो आपका जो यूएसए है नंबर 1, ब्राजील नंबर 2, थर्ड नंबर पे आपका इंडोनेशिया आता है। उसके अलावा जो आपके ये यहाँ पे जो कुछ जैसे चाइना है, चाइना का जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है, लगभग चाइना 31 टेरावाट आवर करता है। बट एज पर एज एरिया के हिसाब से देखा जाए तो चाइना का जो उसमें वो है वो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। इंडिया का तो सिर्फ और सिर्फ 15 टेरावाट आवर है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे कलर फेड हो रहा है, सम पार्ट ऑफ यूरोपियन कंट्री है इनका ठीक ठाक है।
तो आप एज मेरा जो ये लेटेस्ट डाटाबेस है इसके हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं कि विच कंट्री इज आर इन टॉप कंडीशन। तो इसमें भी आप टॉप 5 याद रखिए। फर्स्ट नंबर यूएसए, सेकेंड नंबर ब्राजील, थर्ड नंबर आपका इंडोनेशिया, फोर्थ नंबर आपका जर्मनी, फिफ्थ नंबर आपका फ्रांस और सिक्स्थ नंबर पे आपका जाता है चाइना। तो ये सारे टॉप 5 6 जो भी कंट्रीज है, आपसे कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए ड्यूरिंग वाइवा तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं कि इस तरह से आपका सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट विल बी द जियोथर्मल। अब जियोथर्मल की डेंसिटी हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि जो मेन 4 रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है दैट विल बी द सोलर, विंड, बायोफ्यूल और बायोमास, और आपका चौथा जो इंपॉर्टेंट है दैट विल बी द जियोथर्मल। जो टाइडल और ओटीईसी है सब इसी में आ जाता है, जियोथर्मल के अंदर ही आ जाता है। तो जब मैं जियोथर्मल की डेंसिटी की बात करूंगा तो जियोथर्मल की डेंसिटी आप देखिए, जियोथर्मल जो है वो हमें किसमें दिया गया है, कैपेसिटी इन मेगावाट। तो इसमें इंडिया के पास तो रेयरली 1-2 जगह पे है, हम लोग कहीं पे प्रॉपर्ली उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में नहीं कर रहे हैं आज के डेट में जियोथर्मल। कुछ हमारे पास जियोथर्मल पॉन्ड्स है बट दे ऑल आर स्पिरिचुअल पॉन्ड्स, उसके रिलीजियस पॉन्ड्स है। जैसे गौरी कुंड आप अमरनाथ जाएंगे वहां पे गर्म कुआं है, राजस्थान में आप तालछापर जाएंगे वहां पे है, सरिस्का जाएंगे वहां पे गर्म कुंड है, लोहारगल जाएंगे वहां पे गर्म कुंड है, बिहार में गया जाएंगे वहां पे गर्म पानी का कुंड है। बट एक एग्जैक्ट में जो आप प्रॉपर कहेंगे इस तरह से कुछ नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां पे आपको हॉट पॉन्ड मिलेंगे। लेकिन आप जो ये कहेंगे कि प्रॉपर हम उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं पे, तो वो हम कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट इंडिया में कहीं पे भी। तो आपका जो, अगर मैं जियोथर्मल की बात करूं तो इसमें जो सबसे ज्यादा लीड कर रहा है जियोथर्मल में वो यूएसए कर रहा है। यूएसए लगभग 2550 मेगावाट जो है वो जनरेट कर रहा है बाय यूजिंग जियोथर्मल पावर से। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो इसमें आता है आपका, वो आता है एक आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो जनरेशन है वो है 2130 मेगावाट जो है वो जनरेट करता है बाय यूजिंग जियोथर्मल। थर्ड नंबर पे आपका आता है टर्की। टर्की का लगभग जो है जनरेशन वो 965 मेगावाट के आसपास है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है इटली। इटली का लगभग 800 मेगावाट के आसपास है। उसके बाद आपका जो आता है न्यूजीलैंड 525 मेगावाट के आसपास आता है। उसके बाद आपका आता है एक इनसे ऊपर आता है वो है 823, दैट विल बी दी केनिया। साउथ अफ्रीकन कंट्री है केनिया, वहां पे होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आप देखते हो इसके थ्रू। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया लगभग नील है। जर्मनी में 42 मेगावाट है और आपका फ्रांस जो है दैट विल बी 1514 मेगावाट। तो जो 2 यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ पे फ्रांस और फ्रांस का कुछ नहीं है इसमें ज्यादा योगदान, मैं टर्की की बात कर रहा था। टर्की जो है लगभग 1514 मेगावाट है। तो अगर मैं ऑर्डर वे में जाऊं, अगर मैं आपको बताने के लिए जियोथर्मल का, तो सबसे टॉप लेवल पे आपका अमेरिका आता है, सेकेंड नंबर पे आपका आता है इंडोनेशिया, थर्ड नंबर पे आता है आपका टर्की, फोर्थ नंबर पे आता है आपका न्यूजीलैंड, फिफ्थ नंबर पे आता है आपका केनिया, सिक्स्थ नंबर पे आता है आपका इटली, और उसके बाद आपको मैंने टॉप 6 जो है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा 7वें नंबर पे आता है आपका न्यूजीलैंड। तो ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे, फर्स्ट यूएसए, सेकंड आपका हो गया इंडोनेशिया, थर्ड हो गया आपका टर्की, फोर्थ हो गया आपका ये क्या कहते हैं इसको, केनिया, फिफ्थ हो गया आपका ये इटली, सिक्स्थ हो गया आपका ये न्यूजीलैंड जो है वो आपका थर्ड नंबर पे ही आता है, 965 है उसका, और सिक्स्थ नंबर पे आपका आ जाता है इटली, और 7वें नंबर पे आपका आ जाता है केन्या। तो ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा इंटेंसिटी है जियोथर्मल का, आपको मैंने पहले ही बताया। और इसको अगर आप ग्राफ के कलर को देख लेंगे तो उससे आपको पूरा का पूरा जो है वो इंटेंसिटी पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री इसमें आगे है, कौन सा पीछे। चाइना की बात करोगे तो चाइना जियोथर्मल में बहुत ही कम 27.26 मेगावाट के आसपास कर रहा है। हाँ, एक रसिया है, रसिया भी 74 मेगावाट जियोथर्मल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। रसिया के पास ज्यादा नहीं है, ना चाइना के पास है, बट लीडिंग कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड नंबर पे आपका इंडोनेशिया, थर्ड पे आपका टर्की, फोर्थ पे आपका न्यूजीलैंड, फिफ्थ पे आपका हो गया केनिया। ये टॉप 5 कंट्रीज आपको जियोथर्मल की याद रखनी पड़ेगी फॉर योर वाइवा। और ये लेटेस्ट डाटा है
2019 के हिसाब से। तो गाइज आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको जो 4 हमारे मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, इसका क्या सिनेरियो है और इसका क्या ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे कितना जनरेशन होता है, बाय यूजिंग दीज 4 स्लाइड्स आप इजीली उसको समझ सकते हैं, उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं। मेरे लेक्चर में जब आप सुनेंगे तो आपको सारे कंट्रीज का डाटाबेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो की बात करें तो जनरली 4 रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज विंड, सेकेंड इज सोलर, थर्ड इज बायोफ्यूल और बायोमास एंड फोर्थ इज जियोथर्मल। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो सभी को पढ़ना है, सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है और आजकल तो एमएससी में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ साथ +2 में भी किया गया है। तो जो ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो आपको मेरे इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। यू डोंट हैव एनी बॉदर टू गेट एनीवेयर। और जो इसका अपडेटेड वर्जन है लेक्चर का वो मैंने पहले ही कहा है, दैट विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट आप एज पर एज योर सिलेबस ही जाइए सिर्फ, और सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो, मैंने उसी पे डिस्कस किया। और जो टॉप 4 लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है उसी के बारे में मैंने पूरे वर्ल्ड का आपको बताया कि कहाँ पे कितना जनरेशन हो रहा है। क्लियर है? तो इफ यू आर द फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, kindly subscribe my channel and share with the students. Thank you guys, wish you all the best.